Welcome back, all of you, all the dear students. Today, we will try to learn our next lesson of the civics, lesson number 9, in which we are going to learn especially about our fundamental rights, fundamental duties, and directive principles of state policy. These are all the three different important factors which are very important for our living style, or when we are especially thinking that how should I run my life, how should my life should be. At this situation, we need to understand the most important factor, that is our fundamental rights, our fundamental duties, and directive principles of state policy. Now, in the introduction, understand it properly. In the earlier chapter, that is in the 8th chapter, we have studied Indian Constitution. How was the Indian Constitution framed? Who framed it? What are its features? Then we studied about the preamble also, and important pillars, the most important factor, as well as the specific characteristics of constitution also. But in this chapter, we will study about other important characteristics of constitution. Constitution के बाकी जो बचे हुए जो important characteristics है, we'll try to understand them properly. That is fundamental rights, fundamental duties, and directive principles of state policy also. Now, what is this directive principles of the state policy? We'll understand it. कंट्री के लिए जो गाइडलाइंस होती हैं, कंट्री को चलाने के लिए जो गवर्नमेंट होती है, उनको गाइड करने के लिए कौन होता है, उनको डायरेक्शन कौन बताता है, और जो बाकी स्टेट्स हैं उनके अंदर कैसे स्टेट्स के जो गवर्नमेंट्स हैं या वहां पर जो इंपॉर्टेंट अथॉरिटीज है, हाउ दे रन द गवर्नमेंट. लेट अस अंडरस्टैंड इट. फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर ह्यूमन राइट्स. ह्यूमन राइट्स क्या क्या होता है? ह्यूमन राइट्स आर दोज राइट्स which not only give a person his or her basic existence. आप इस पर्टिकुलर दुनिया में रहते हो, पर्टिकुलर कंट्री में रहते हो, पर्टिकुलर स्टेट में रहते हो, और आपका अस्तित्व बना हुआ है, तो इसका जो अधिकार आपको रहने का दिया गया है और आपका अस्तित्व बनाए रखने के लिए जो आपको राइट्स दिए गए, ओके, दैट इज सेड टू बी द ह्यूमन राइट. इसके साथ साथ एक one more thing is very important, but also overall development in which society helps to construct an environment. Any person should overall get development. सभी प्रकार की developments उसकी होनी चाहिए, in which society helps to construct an environment. And for this purpose, when you are developing, society is providing a good help to you. Especially, such a kind of an environment is constructed which enables any person, him or her, to grow, correct, in an all-round type of developments. In every democratic country, हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, हर एक कंट्री डेमोक्रेटिक ऐसा नहीं है, लेकिन जितने भी डेमोक्रेटिक नेशंस हैं, the citizens are conferred, given, okay, with the basic rights, conferred with or are inculcated with the basic rights. Basic rights उनको जन्म से ही मिलते हैं. A person is not discriminated on the basis of caste. किसी को किसी जाति पाति के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ओके, एंड कैन एक्सपीरियंस द बेसिक राइट्स. और ऐसा जब होता है तो वो व्यक्ति अपने बेसिक राइट्स को महसूस करता है, एक्सपीरियंस करता है. देन सेकंड, द प्रोटेक्शन ऑफ दीज राइट्स आर एश्योर्ड बाय सोसाइटी एंड नेशन और द नेशन और द कंट्री एज वेल. और ये जो बेसिक राइट्स हमें जो दिए हुए, उसका प्रोटेक्शन जो है, ओके, उसकी एश्योरिटी इज प्रोवाइडेड बाय द सोसाइटी एज वेल एज द नेशन. सोसाइटी भी हमें जीना सिखाती है और जीने भी देती है, प्लस हमारा कंट्री हमें जीने के लिए, अपने तरीके से जीने के लिए एक अधिकार देती है. द पर्सन बाय हिज बर्थ, जन्म से ही कोई भी व्यक्ति owns the rights, उसको जन्म से ही उसके अधिकार उसको मिल जाते हैं. जैसे जन्म लेता है कोई व्यक्ति, तो उस डेमोक्रेटिक नेशन में उसको अधिकार मिलने शुरू हो जाते हैं. which are his or her basic rights which are known as human rights. और यही जो बेसिक राइट्स है उसको जो जन्म से मिलते हैं, तो उसे हम ह्यूमन राइट्स कहेंगे. Now, United Nations General Assembly has declared human rights on 10th of December 1948. कब दिए गए थे? 10th of December.
10th ऑफ दिसंबर को हमें ह्यूमन राइट्स के बारे में डिसीजन लिया गया था। और इसको किसने डिसाइड किया था? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशंस में अलग अलग बॉडीज है जो हम सिविक्स के आगे आगे के लेसन्स में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेसन्स में पढ़ेंगे। यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है तो उसने डिक्लेयर किया था ह्यूमन राइट्स को। कौन सी तारीख को? ऑन 10th ऑफ दिसंबर 1948। कब किया था? 10th दिसंबर 1948 में डिक्लेयर किया था। क्लियर? एंड 10th दिसंबर इज सेलिब्रेटेड, और 10th दिसंबर जो है उसे हम क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। किस तरह से? एज ह्यूमन राइट्स डे। उसे हम ह्यूमन राइट्स डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। फ्रॉम द ग्लोबल अनाउंसमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो ग्लोबल अनाउंसमेंट हुई ह्यूमन राइट्स की, सर्टेन बेसिक एंड इंपॉर्टेंट ह्यूमन राइट्स आर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वर्ल्ड के अंदर जितने भी अलग अलग ह्यूमन राइट्स बने हुए हैं, तो ग्लोबल अनाउंसमेंट के बाद उसमें से कुछ विशेष प्रकार के इंपॉर्टेंट ह्यूमन राइट्स जो है वो हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए। एंड देयर बाय दिस राइट्स आर प्रोटेक्टेड इन अ रिस्पेक्टफुल वे। और इन राइट्स को बड़े रिस्पेक्टफुल मैनर में, डिग्निफाइड मैनर में दे आर प्रोटेक्टेड बाय द कंट्री। Thus, those human rights which are included by the Constitution of India are known as fundamental rights. जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो ह्यूमन राइट्स इंक्लूड किए गए या अंदर उसमें मिक्स किए गए या फिर उनको ऐड किया गया, इंक्लूड करना, ऐड करना कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब है जिसके अंदर हमारे नियमों का पूरा डिटेल लिखा हुआ है, और इन सभी नियमों को जब इंक्लूड किया गया, दे आर कॉल्ड एज fundamental rights. These human rights proclaim the human beings to live in a dignified way. क्या करते हैं ये human rights? They allow us to live our life, especially for all the human beings to live in a dignified way. हमें एक respectful manner में जीने का अधिकार मिलता है। For the existence of human being, the basic needs, इंसान का अस्तित्व बना रहे कंट्री में, इसके लिए उसकी जो बेसिक नीड्स है, whatever small needs are there, जो बेसिक नीड्स मानी जाती है, फूड, क्लोथ्स, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ आल्सो should be received in a respectful or in a dignified and respectable way. dignified का मतलब ही एक प्रकार से respectable और respectful manner में, और ये हमें मिलना चाहिए, इसीलिए ये फंडामेंटल राइट्स मेंशन किए गए। Democratic country allows its citizens to enjoy equal rights for multifaceted development. अलग अलग प्रकार की डेवलपमेंट्स अगर इंसान करना चाहता है तो उस वक्त उस सिटीजन को अपने एक समान तरीके के राइट्स एंजॉय डेमोक्रेटिक कंट्री उसे अलाउ करती है कि तुम्हें जो बनना है वो बनो, तुम्हें जो ऊंचाई पर पहुंचना है वो पहुंचो, तुम्हें जिस तरह से अपने मेहनत से पैसे कमाने वो कमाओ। और ये मल्टीफेसेटेड डेवलपमेंट्स का अधिकार एकदम इक्वल मैनर में सबको एक समान तरीके से सिटीजन्स को डेमोक्रेटिक कंट्री अलाउ करता है। द स्टेट, दैट इज द कंट्री यू कैन से, गारंटीज सच अ कंडक्टिव एनवायरनमेंट। और ये स्टेट क्या करता है? गारंटी लेता है किस बात की? इस तरह का कंडक्ट एक दूसरे के साथ हम जब कोई भी प्रकार का एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं तो ऐसा होना चाहिए एनवायरनमेंट कि जिसमें हम एक दूसरे के आइडियाज को समझ सकते हैं, और उस प्रोसेस को कंडक्टिव एनवायरनमेंट कहते हैं, जिसे हम पूरी तरह से अलाउ करते हैं। वेर इन वन हैज प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जहां पर उसे उसके फंडामेंटल राइट्स का अधिकार, प्रोटेक्शन मिलता है, संरक्षण मिलता है। अ ट्रू आइडेंटिटी ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम, और जिस कंट्री में, एनी कंट्री विच प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इट्स सिटीजन्स, it becomes a very true identification of democratic system. तब जाकर हम लोकतंत्र का आधार बन पाते हैं, लोकतंत्र में हम अच्छे से जी पाते हैं ना। व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स? हमने ऊपर ह्यूमन राइट्स पढ़े, ह्यूमन राइट्स के नीचे अब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं। द नेशंस स्टेबिलिटी, एनी कंट्री इफ यू वांट टू मेक इट वेरी कांस्टेंट, अगर उसको सही ढंग से स्टेबल रखना है, एक समान तरीके से उसको उछाल या नीचे गिरना, इस तरह से अगर आपको देखना नहीं कंट्री को, तो उसकी स्टेबिलिटी को अगर मेंटेन करना है तो उस वक्त प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स फ्रीडम, दूसरी चीज सिटीजन्स के फ्रीडम का प्रोटेक्शन, एंड डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी शुड बी मेंटेन, लोकतंत्र को बनाए रखना है।
These are all things protected through the fundamental rights. इनको प्रोटेक्ट किस तरह से किया जाता है? फंडामेंटल राइट्स के थ्रू ना। फंडामेंटल राइट्स के अंदर हम फंडामेंटल कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के राइट्स मेंशन किए हुए हैं। 1, right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, and last important is right to constitutional remedies. ये 6 के 6 फंडामेंटल राइट्स के प्रकार जो हमें मिले हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ सही ढंग से जीने के लिए। पहला पड़ता है फर्स्ट वन, राइट टू इक्वालिटी, एक समान अधिकार मिलना। वर्ड में ही छुपा हुआ है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। लॉ के सामने सब एक समान होते हैं, कोर्ट के सामने हम सब एक समान हैं। कोई मंत्री हो या कोई गरीब हो या कोई मिडिल क्लास का हो, सबके लिए एक समान तरीके का नियम जो चलाया जाता है, दैट इज सेड टू बी राइट टू इक्वालिटी। एंड सेकंड, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सभी को लॉ के सामने या जो लॉज बने हैं इन सबका इक्वल प्रोटेक्शन किया जाता है। These are all included in the right to equality. These are added in the right to equality. This fundamental right is the major foundation. सबसे मुख्य फाउंडेशन माना जाता है इसको, सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक फाउंडेशन है वो ऑफ ऑल अदर राइट्स। बाकी राइट्स अगर हमें मिलते हैं तो इसके आधार पर ही मिलते हैं, और उसके जो फायदे हैं, प्रिविलेजेस, एडवांटेजेस, दे आर गारंटीड टू इंडियन सिटीजन्स, और इसकी वजह से इंडियन सिटीजन्स को उस चीज की प्रिविलेजेस मिलती है या उसके फायदे होते हैं। इट इज वन ऑफ द चीफ गारंटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये जो फंडामेंटल राइट्स के अंदर राइट टू इक्वालिटी है, ये सबसे चीफ टाइप की गारंटी लेता है, किस चीज का? ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ये सबसे मुख्य मूलभूत, सबसे मेन पिलर है, मेन आधार है। Thus, it is imperative, positive, or in a positive manner you can say, that every citizen of India has easy access to the courts to exercise his or her right to equality. Anybody who is not provided or given the rights of equality can go to the court and try to go against the matter. कोई भी कोर्ट में जा सकता है और उसके अधिकार की डिमांड कर सकता है। अगर उसके अधिकार उसको नहीं दिए जा रहे, उससे छीने जा रहे हैं, then one can go to the court and exercise his or her rights to equality. कि मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटा के उससे डिमांड कर सकते कि मेरे साथ अन्याय क्यों हो रहा है। According to this right, no person shall be shown favoritism on the basis of color, caste, creed, language, etc. सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस नियम के अनुसार किसी भी व्यक्ति के साथ कोई विशेष प्रकार की फेवरेटिज्म नहीं दिखानी है कि ये हमारे गोरे रंग वाला है, या हमारे काले रंग वाला है, हमारी जाति वाला है, हमारे क्रीड वाला है, हमारे यस प्रजाति वाला है, या कोई हमारी भाषा बोलने वाला है, या एक्सेट्रा, जो भी अलग अलग चीजें हम ग्रुप में हमारे समाज को लेकर, रिलीजन को लेकर ये जो करते भेदभाव, ये बिल्कुल राइट टू इक्वालिटी में अलाउ नहीं है। याद रखना, सबको एक समान तरीके से इस नियमों का पालन करना होता है, किसी को स्पेशल टाइप का फेवरेटिज्म नहीं दिया जाता है। लॉ इज इक्वल टू ऑल, लॉ सबके लिए एक समान है। दैट इज फ्रॉम द प्यून टू द प्राइम मिनिस्टर, प्यून से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक समान नियम है। दोनों में से अगर कोई भी गलती करता है तो उस दोनों में से किसी को भी ऐसा नहीं कि उसको फेवरेटिज्म, ये मिनिस्टर इसको सजा मत दो, ये प्यून है इसलिए इसको सजा दो, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि इस नियम के अनुसार दोनों को समान तरीके का पनिशमेंट मिलेगा। इफ दे एक्ट अगेंस्ट द लॉ, अगर वो लॉ के खिलाफ जाते हैं तो उनको समान तरीके का ही इस आधार मिलता है, मतलब पनिशमेंट भी वैसी मिलेगी दोनों को जैसे एक गरीब को एक अमीर को मिलनी चाहिए। दे आर ट्रीटेड इक्वली एंड आर बाउंड टू द जनरल कोर्ट ऑफ लॉ, और इन्हें किसी भी हाल में जनरल कोर्ट ऑफ लॉ के सामने जो फाइनल डिसीजन होगा उसका पालन करना होगा। However, the president and governors have certain privileges. लेकिन एक विशेष बात बता देता हूं मैं, कंट्री के जो प्रेसिडेंट होते हैं और कंट्री के साथ साथ जो गवर्नर्स होते हैं, स्टेट के अंदर जो गवर्नर्स होते हैं, जो वहां के सीएम के ऊपर
जैसे कि कंट्री के लिए प्रेसिडेंट के नीचे प्राइम मिनिस्टर के कैबिनेट मिनिस्टर्स काम करते हैं, लेकिन वो सिर्फ सीट के लिए होते हैं, नाम के लिए होते हैं। प्रेसिडेंट और गवर्नर सिर्फ नाम के लिए होते हैं, पूरा कामकाज तो सीएम और पीएम ही संभालते हैं। लेकिन उनको एक फायदा है, प्रेसिडेंट और गवर्नर्स के लिए कुछ अलग से नियम बने हुए हैं, हल्के से। नहीं तो ऐरा गैरा न तो कह रहा कोई भी आरोप लगा देगा और किसी को भी उठा के ले जाएगा। तो पूरे कंट्री के सामने प्रेसिडेंट का या गवर्नर्स का अपमान करना ये जायज नहीं है, इट डजंट लुक गुड आल्सो। और इसलिए उसके लिए स्पेशल टाइप के, सर्टेन टाइप के प्रिविलेजेस हैं। इन ईच एंड एवरी सर्कमस्टेंसेस और सर्कमस्टेंस द लॉ शुड प्रिवेल इक्वली। हर एक प्रकार के कंडीशंस में, सर्कमस्टेंसेस मतलब कंडीशंस में जो नियम होता है, जो लॉ होता है, शुड प्रिवेल इक्वली, सब जगह पर इक्वल मैनर में लॉ यस दिखना चाहिए या उसको लागू करना होता है। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन और स्पेसिफिक फेवरेटिज्म, ना कोई भेदभाव होना चाहिए, एंड नॉट इट शुड बी अ स्पेसिफिक फेवरेटिज्म शोन टू एनी पर्टिकुलर पर्सन और एनी पर्टिकुलर क्लास। ये ऊंच नीच का भेदभाव या गरीब या अमीर का भेदभाव या कोई पर्टिकुलर पर्सन के फेवरेटिज्म में कोई नियम लागू करना है या कोई भेदभाव को ध्यान में रखकर नियम लागू करना है, ऐसा कोई नियम कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। समान, एक समान होंगे सब। एवरी लॉ शुड बी इक्वली डेजिग्नेटेड, हर एक जो लॉ है वो एकदम एक समान तरीके से सबको लागू किया जाता है, डेजिग्नेट किया जाता है, या सबके लिए एक समान तरीके का नियम लागू होता है। एवरी पर्सन शैल हैव इक्वल एडमिटेंस टू पब्लिक प्लेसेस लाइक शॉप्स। हर एक व्यक्ति को, पहले कैसे होता था, कुएं के पास किसी पिछड़े हुए जमाती को अलाउ नहीं करते थे, पानी निकालने के लिए भी अलाउ नहीं करते थे, पता है आपको। छूत अछूत की भावनाएं थी, है ना। कोई जैसे कि आपने लगान मूवी में देखा होगा, तो उसमें एक रोल प्ले करने वाले एक बंदे के साथ उस वक्त जैसा होता था ब्रिटिशर्स के जमाने में, कि पूरा गांव उसको यस छूता नहीं है, लेकिन उसके हाथों से बना हुआ चीज पहनते हैं। इजंट इट वेरी फनी, करेक्ट। तो ये जो नियम है तो सबके लिए एक समान है। एनीबडी कैन गो एट द पब्लिक प्लेसेस सच एज शॉप्स में हर एक व्यक्ति जा सकता है, रेस्टोरेंट्स में जा सकता है, होटल्स में, पब्लिक एंटरटेनमेंट की प्लेसेस में जैसे कि सिनेमा हॉल्स वगैरह वगैरह। ऑल पीपल हैव द इक्वल एक्सेस टू रोड्स। एक एग्जांपल देता हूँ, जरूरी नहीं कि भिखारी अगर सिनेमा हॉल में, थिएटर में अगर पैसे देकर जाना चाहता तो बैठ सकता है वो, ऐसा कोई उसको रोक नहीं सकता कि भाई तू भिखारी है, तू सिनेमा नहीं देख सकता, है ना। भले ही उसके आजू बाजू वाले गायब हो जाएंगे अच्छे फ्रेगनेंस की वजह से, लेकिन फिर भी याद क्या रखना है कि है तो वो इंसान, भले ही उसका पेशा अलग हो, भीख मांग कर खाता हो, लेकिन ईमानदारी से खाता तो है, ईमानदारी से मूवी तो देख रहा था, तो उससे भी उतना ही अधिकार है जितना किसी एक अमीर को होता है। सो एवरीवन आर अलाउड टू गो टू द फॉलोइंग प्लेसेस। एवरीवन कैन यूज द रोड्स, एवरीवन कैन यूज द लेक्स एंड यूज ऑफ द पब्लिक वेल्स, जो पहले बहुत बड़ी समस्या थी, एंड इवन द बाथिंग घाट्स, नहाने की जो जगह होते हैं नदी के किनारे, बाथिंग घाट्स जो होते हैं नहाने के लिए जाते हैं, वो भी हर एक व्यक्ति को, उसमें ना कोई समाज देखा जाएगा। लेकिन हमारे कंट्री में आज भी कुछ ऐसे गांव हैं या कुछ ऐसे समाज के लोग हैं जो आज भी पुराने नियमों का पालन करते हैं, कस्टमरी और ट्रेडिशनल प्रोसेसेस को आज भी चला रहे हैं। है ऐसे कोने में, ऐसे कुछ गांव है, ऐसे कुछ टाउन्स भी हैं। However, the state has the right to make any special arrangement for women and children. लेकिन एक बात याद रखना, कंट्री को एक अधिकार दिया जाता है कि वो अपने कंट्री के विमेन और बच्चों के लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट कर सकता है, और फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, या तो फिर स्पेशल टाइप की किसी सोशली या एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास जो है, समाज से पिछड़ा हुआ व्यक्ति जो अनपढ़ भी है या फिर एजुकेशन की फैसिलिटीज नहीं मिल रही है, such people can be given the special chances to develop, such as backward class या कोई scheduled caste या scheduled tribes के जो लोग होते हैं, पिछड़ी जमातियां जो होती हैं, उनको विशेष प्रकार की डेवलपमेंट के लिए कुछ अलग से अधिकार दिए जाते हैं। अधिकार सेम है, बस उनको कुछ अलग से फैसिलिटीज दी जाती है ताकि दे कैन बी ऑल्सो यस अपराइज्ड और दे कैन बी ऑल्सो राइज्ड इन द सोसाइटी विद द अदर्स।
नो सिटीजन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द रेस, कास्ट, रिलीजन, क्रीड। इन चीजों को ध्यान में रखकर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। या तो फिर डिसेंट और प्लेस ऑफ द बर्थ इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी गवर्नमेंट सर्विसेज, या तो फिर वो दिखने में कैसा है, या फिर उसका जन्म स्थल कौन सा है। ओके, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी गवर्नमेंट सर्विसेज, या फिर गवर्नमेंट सर्विसेज को ध्यान में रखकर इसको जॉब मिलेगी, उसको नहीं मिलेगी, ये है, वो धर्म वाला है, ये कास्ट वाला है, ये क्रीड वाला है, ये डिसेंट है, इसका जन्म इधर नहीं, ये सब कुछ नहीं देखना होता है गवर्नमेंट सर्विसेज में। आपको उस वक्त जो रिजर्वेशन है उसके हिसाब से, कितनी टैलेंट है उसके हिसाब से उसको जॉब दी जाती है। एंड हायर एजुकेशन अंडर द स्टेट आल्सो, या फिर कोई हायर एजुकेशन जो है उसका भी अधिकार हर एक को एक समान तरीके से दिया जाता है, या फिर उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हम। इन मैटर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जाम होती है और उसमें कोई विद्यार्थी पास होकर कोई अच्छी क्लास 1 क्लास 2 की पोस्ट पर चुना जाता है, तो उस वक्त भी every person is given the equal opportunities, clear, have to be offered to all the citizens, और ये जगह हर एक को अपॉर्चुनिटीज दी जाती है। everyone can go for the seat, अगर वो लायबल है तो उसको चुना जाता है। तो उस वक्त जो कमिटी होती है वो सिलेक्ट्स द पर्सन, दे नेवर डिस्क्रिमिनेट द पर्सन। वो पब्लिक सर्विस कमीशन डिसाइड करता है कि किसे चुनना है और किसे नहीं, किसके अंदर कितनी टैलेंट है वो देखकर वो चुनते हैं। However, लेकिन फिर भी the state is given permission to make decision regarding or required qualifications for the said services। स्टेट पर डिपेंड करता है या स्टेट डिसाइड करता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी पोस्ट के लिए कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, कितने हद तक उसकी पढ़ाई लिखाई हुई होनी चाहिए, ये ध्यान में रखकर उसको सर्विसेज में यस ऐड किया जाता है। सेकंड पॉइंट, एज अ गारंटी टू सोशल जस्टिस एंड पर्सनल डिग्निटी, एक गारंटी जो हमें सोशल जस्टिस के लिए मिलती है और पर्सनल रिस्पेक्ट हमें मिलती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए अ गारंटी टू सोशल जस्टिस एंड पर्सनल डिग्निटी। सेकंड, अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश्ड। अनटचेबिलिटी, जो पहले जमाने में मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, जो भावनाएं थी कि किसी निम्न दर्जा के व्यक्ति को या किसी नीचे की जाति के व्यक्ति को यस छूना नहीं चाहिए। छूने से क्या हो जाएगा, उंगलियां कट जाएगी, जल जाएगी, या एसिड निकलेगा उसमें से, ऐसा कुछ है नहीं ना। तो ये जो प्रोसेस थी पहले अनटचेबिलिटी और अनटचेबिलिटी की जो कंसेप्ट थी, उसको पूरी तरह से कंट्री से एबॉलिश किया गया है, मिटा दिया गया है। और इसकी आज अगर कोई भी प्रैक्टिस करता हुआ दिखा, या ऐसा कोई भी समाज किसी के साथ अन्याय करता हुआ दिखा, या कुछ उल्टा पुल्टा बोल देता है, तो ये पूरी तरह से प्रोहिबिट किया तो है ही है, लेकिन वो एक पनिशेबल ऑफेंस बन जाएगा। मतलब उसको रोक तो लगाई गई, ऐसा कोई अनटचेबिलिटी का कंसेप्ट ना चलाए, और अगर दिख गया तो उसे पनिशमेंट मिलनी पक्की है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, टाइटल्स एंड एपिथेट्स। एपिथेट्स मतलब एडजेक्टिव्स, और यहाँ पर एडजेक्टिव मतलब क्या होता है, जो हम कभी कभी जो टाइटल्स लगाते हैं नाम के आगे, नाम के पीछे, ओके, विच क्रिएट आर्टिफिशियल डिस्क्रिमिनेशंस। इसकी वजह से ना एक आर्टिफिशियल टाइप का, नेचुरल तो नहीं है लेकिन आर्टिफिशियल हम भेदभाव करते हैं सोसाइटी में। हमारे नाम के आगे कुछ विशेष प्रकार के वर्ड्स यूज किया करते थे पहले जमाने में, ओके, इन द सोसाइटी। उसकी वजह से एक समाज में, इन अ सोसाइटी यू आर क्रिएटिंग अ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द लोअर कास्ट एंड द हायर क्लास, एंड देयरफॉर दीज वर्ड्स हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम द सोसाइटी। है, आज भी है कोने में, मानता हूं मैं, बट स्टिल they have been removed according to the constitution. The adjectives जो मैंने आपको अभी जस्ट बताया, the adjectives used before the names like sir, दीवान जी, राय बहादुर जी, ये सब अब मिट गए हैं, जो पहले नाम के आगे लगाए जाते थे, है ना। तो अब उसको आज यूज नहीं किया जाता है कोने काने में होंगे बहुत सारे, लेकिन वो धीरे धीरे करके पूरी तरह से मिट जाएंगे। After independence, the government, in order to felicitate special contributions, इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने जो वेलकम करना था सभी प्रकार के स्पेशल कंट्रीब्यूशंस जो थे, फेलिसिटेट स्पेशल कंट्रीब्यूशंस एंड अचीवमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, और किसी भी व्यक्ति की अचीवमेंट्स जो है, किसी एक व्यक्ति या ग्रुप की, इन वेरियस फील्ड्स, अलग अलग फील्ड्स में, कोई खेती में, कोई साइंस में, तो कोई गेम्स में। एट दिस टाइम
द गवर्नमेंट गिव्स स्पेशल अवार्ड्स लाइक भारत रत्न, अगर कोई बड़ी अचीवमेंट किए तो उसको ध्यान में रखकर गवर्नमेंट उस व्यक्ति को भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, these are the special awards given to those people who are achieving a great task. या फिर परमवीर चक्र जो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है आज के तौर पे, या फिर पहले से जो सोल्जर्स जो अपनी खुद की फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं, अपनी जिंदगी जोखिम में डालकर बॉर्डर्स पर खड़े रहकर जो मर मिटने को तैयार हो जाते हैं हमारे संरक्षण करने के लिए, तो उनकी गाथाओं को ध्यान में रखकर या उनकी वीरता को ध्यान में रखकर परमवीर चक्र दिया जाता है। ये बहुत बड़ा एक रिवॉर्ड है या अवार्ड माना जा सकता है जो किसी के सीने पर जब लगता है तो उसे वो महसूस होता है। इट इज स्पेशली अवॉर्डेड इन द मिलिट्री सर्विसेज, ये खास करके मिलिट्री की सर्विसेज में दिया जाता है। एडजेक्टिव्स जो है ना उसमें खास करके इस फोर्सेस में जनरल, मेजर, चीफ मार्शल, फील्ड मार्शल, ये एक्चुअली पोस्ट है, ये एडजेक्टिव्स है जो भेदभाव नहीं दिखाते हैं। एक्चुअली वो उनकी पोस्ट का नाम है। अगर कोई डॉक्टर बना तो उसको डॉक्टर ही बोलूंगा ना मैं, कोई लुच्चा लफंगा तो नहीं बोल सकता उसको। सो आई नीड टू यूज प्रॉपर वर्ड्स स्पेशली फॉर देयर पोस्ट, फॉर देयर अचीवमेंट्स। तो ये जो है ना, दे आर एडेड बिफोर द नेम्स इन मिलिट्री सर्विसेज, ताकि उनका रैंक पता चले, उनकी सर्विसेज के उनके एक्सपीरियंसेस पता चले। तो ये कुछ एडजेक्टिव्स जो ऐड किए गए और कुछ एडजेक्टिव्स जो पहले जमाने से यूज होते थे उनको निकाल दिए गए, which is not considered as a violation of right to equality. इन वर्ड्स को यूज करके हम राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन नहीं करते हैं। You are not violating, you are not going against the right to equality, but you are giving the respect to those people, especially by adding these particular titles, ताकि उनको समाज में जो अपने कर्मों का फल मिलता है या कर्मों की हिसाब से जो टाइटल मिलते हैं, तो उनका रैंक, उनकी पोस्ट, उनकी महानता हमारे सामने आती है। The aim of this right is to form an equitable society. जो एम है इस राइट का, तो क्या है? सिर्फ इक्वल टाइप की सोसाइटी के यस निर्माण को तैयार करना या निर्माण करना। एंड देयर बाय एस्टैब्लिश वन थिंग, व्हाट इज इट? रूल ऑफ लॉ इन इंडिया। रूल ऑफ लॉ को हम तैयार कर सकते हैं इंडिया में। एंड द लास्ट पॉइंट फॉर टुडे सेशन हियर इट इज टू प्रोवाइड स्पेसिफिक सर्विसेज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ और क्लासेस। स्पेसिफिक टाइप की सर्विसेज हम जब देते हैं किसी विशेष प्रकार के ग्रुप को, जो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं एक्चुअली समाज में, अलग अलग क्लासेस होते हैं, फॉर देम देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोविजंस अंडर लॉ फॉर एग्जांपल्स। और उनके लिए अलग अलग प्रकार के प्रोविजंस, अलग अलग नियम बनाए गए हैं, अलग अलग सर्विसेज में अलग अलग नियम बनाए गए हैं। जब अपने लॉ के अनुसार जब वो अपनी सर्विसेज करते हैं तो उसके लिए थोड़े से नियम अलग बनाए गए हैं। जैसे कि एग्जांपल, देयर आर डिफरेंट लॉज फॉर एडवोकेट्स। अगर एडवोकेट कोई बनता है तो उसके लिए नियम अलग है, डॉक्टर बनता है तो उसके लिए नियम अलग है, टीचर्स के लिए नियम अलग है, इंश्योरेंस के एजेंसीज वालों के लिए नियम अलग है, ऑल द विमेन ऑफ द कंट्री है ना, तो उनके लिए अलग है। देन जुवेनाइल्स, जो अंडर एज स्टूडेंट्स होते हैं, उनके पास से अगर कुछ गलतियां होती है तो उनके लिए नियम अलग है। उनको प्रिजन में नहीं डालते, उनको स्पेशल होम में डाला जाता है जहां पर उनको सबक सिखाया जाता है, नए नए चीजें करना सिखाया जाता है। एंड द लास्ट पॉइंट, द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। समान काम समान पगार। समान काम सब करते तो समान पगार भी मिलनी चाहिए। एक समान तरीके से सबको एक समान तरीके से इस ट्रीट किया जाना चाहिए। एंड दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस आर्टिकल। इसी आर्टिकल का, आर्टिकल मतलब राइट टू इक्वालिटी का एक हिस्सा है। I hope you have understood the matter very properly. Then we'll move in the next session with the right to freedom, okay, in the next period.